how are you, Mustafa, my dear? Yesterday you were absent. अस्सलाम Assalamualaikum, सर। sir. वालेकुम अस्सलाम बेटा, कल कहाँ थे बच्चे? सर सर तबीयत ख़राब तबीयत थी खराब थोड़ी थी सी। थोड़ी सी। चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। और आज we are going to have argumentative essay writing. पहले first of all I will explain it. उसके बाद then we will do the practice. But first let other people join as well. So we have new student as well today. तो उसको भी join कर लेने दो. Then we are gonna take a start. Okay? ओके सर। Okay, sir. ठीक है बेटा, माइक म्यूट कर लो so that we can start like as soon as it gets back. Let me see, either I have, yes, I have given. चलो जी, have I given? Yes, I have given. Let other people join too. Then we are gonna take a start. थोड़ा सा join कर लें और मैं ग्रुप में भी चीज़ें दे देता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना रहें यार। Some students are about to join. They have already seen my message, but I don't know what is the reason that's taking too much time to join here. Let's see what they're talking about here. Yeah, somebody had joined now. Faiza has joined. ठीक है. Okay, let more people join, then we are going to take a start. It's quite important to talk about today's topic. आज थोड़ा सा और डिटेल के साथ थोड़ा समझाऊंगा मैं और इसको थोड़ा सा तुम लोग जल्दी प्रोडक्शंस दोगे, ठीक है? बट like listening it and understanding it is more important than to produce the productions, ठीक है? वो तो एक अलग process होगा. There will be a different process that I will be setting you for the test, right? But right now whatever I am explaining and I'm going to explain for the argumentative essay writing, so you need to listen it quite carefully, okay? So one or two people are more expecting. I'm expecting one or two people more here. So let's see कौन कौन आता है. Still my recording has started, but इनकी recording अभी start नहीं हुई यार. क्या मसला है इनको? I have to message them. Okay, Arkish has finally joined. Right, so let us get started. I have already given you the PDF, students, and you need to open it first, okay? And let's see what is it. There's a PDF format, okay? Arkesh, you also have got the same one, right? So whatever like these other two students have gotten, two more students are expecting, but let's start because we cannot stop here.
right? So hopefully all of you might have opened up that PDF, and today's topic for the argumentative writing is online learning. ठीक है? अच्छा students, one thing more, Arkesh, you are here for the first time since it's your first class at the moment. So I would recommend you, because I have given you one link of my YouTube explanation for the argumentative writing. So after the class, it is highly recommended to you need to watch that video and listen it very carefully. After that, you have to synchronize this segment as well. The recording of the segment will also be provided to you in the form of the YouTube link. Okay. So, anyways, open up the uh, PDF. ठीक है? I'm sharing the screen and I'm opening the same right now. Let me share my screen here. Hopefully my screen is being shared. अच्छा, अब मुझे ज़रा ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बताओ. नो मैटर इन उर्दू, नो मैटर इन इंग्लिश, कुछ भी, कि ऑनलाइन लर्निंग, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ऑनलाइन लर्निंग. कुछ भी बताओ भाई, वॉट एवर यू पर्सनली थिंक. चलो एक काम करते हैं, अजान इज़ गोइंग ऑन, इट्स अबाउट टू स्टार्ट, बल्कि हो गई स्टार्ट. ऑनलाइन लर्निंग के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? टिल अजान इज गोइंग ऑन, सोचो, देन आई आस्क यू, फिर हम एक्सप्लेनेशंस की तरफ आएंगे जल्दी से. ठीक है? जस्ट 2 minutes, लेट द अजान बी गेट ओवर. Okay, hope is being shared. Okay, and I'm putting like myself toward this. So here, before Azan, I asked you a question: is online education better alternative to the traditional classroom or not? I just simply asked you one question, that was, what is your perspective about online learning? So since Mr. Arkish is the new person over here, Mr. Arkish, would you like to unmute your mic and speak up something about that? Yes, sir. Yes, sir. Online learning Online is learning is convenient convenient and Yeah, and budget budget friendly, friendly, right. and and also it helps to also helps reduce to reduce pollutions pollutions because That's because great. Mhm. there is there is no no traveling around. traveling around. Okay, that's much you can say perspective as well. What is your opinion, Faiza? Beta? सर सर ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन बहुत लर्निंग बहुत फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबल और है उसके और टाइम उसके आगे टाइम पीछे आगे होते पीछे हैं होते हैं और ये भी नहीं और ये भी होता नहीं कि होता कि वेदर की वजह वेदर से की वजह स्कूल से स्कूल कैंसिल और इस कैंसिल और तरह इस तरह एंड इट्स एंड Oh, क्वाइट इट्स इजी क्वाइट इजी. quite easy and convenient as well. ठीक है. Mushtaba, beta, what is your opinion?
सर एक तो सर बहुत एक तो इजी बहुत और हम इजी और कहीं हम भी कहीं बैठ के भी ले बैठ के ले सकते हैं, और सकते हैं, वही कि और वो वही कि बजट वो बजट फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली और होता है, और उसका कोई उसका टाइम कोई नहीं, आप टाइम किसी नहीं, भी आप टाइम किसी भी इजीली टाइम बैठ के इजीली ले बैठ के सकते ले हैं। सकते हैं। ना ना ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन उसका और कोई उसका ज़रूरत कोई नहीं ज़रूरत पड़ती। नहीं पड़ती। Like means you can say we can save the amount of the conveyance. I mean conveyance which is like spent all around. ठीक है, the heavy amount of the conveyance can be saved, or heavy amount can of you can say fares, the traffic fare. I mean the private rickshaw. I mean private conveyance fare can be saved. ठीक है, चलो बहरहाल today what we are going to talk about is argumentative essay, and it is online education a better alternative? Acha, you have to keep, I mean keep very focused like on the question. Okay, be very focused on the question. You cannot detract yourself while like speaking up the answers. So, is online education a better alternative to traditional classroom learning? What do I mean by traditional classroom learning? जो हम स्कूल में जाकर पढ़ाई शढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई शढ़ाई करते हैं, ये वो वाली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने कह दिया पहले ही कि भाई डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन, ठीक है, दोनों साइड्स के बारे में डिस्कस करो एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा, एक हमने ये कहा था, एक पढ़ा था कि भाई हम आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव बातें करेंगे। अगर हम इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव तो हम उसको शुगर कोटेड बात करेंगे। कुछ हद तक इस एसे में भी हमने ऐसा ही किया है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट नेगेटिविटी, आई डिड स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट नेगेटिविटी ओवर हियर, but like my positive aspects are more than the negative aspects, but wherever I tried my I mean the negative point, wherever I tried to highlight my negative points here, so I did it with a sugar coating, ठीक है। So at the very first, as you know that I always share the vivid vocabulary related to the topic that I had used in the essays, ठीक है। The vocabularies along with the meanings and its like parts of speech is already there, and the sentences that I have made, it is related to the same essay, the essay sentences that I followed beneath it, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें सारे essay के हैं। अब ये जितने भी vocabularies हैं, almost there are 10 vocabularies, तो इसमें you will have to find it all by yourself during your practice, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और यहाँ पर इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एज फार एज आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, इससे नाम से ही जाहिर है कि अगर हम क्या है, हम आर्ग्यू करेंगे एसेज में, ठीक है, हम चीज़ों को आर्ग्यूमेंट्स पे लेकर आएंगे। बट ऑब्वियसली वही वाली बात कि हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का मेन फोकस पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए, ठीक है। सो as a first paragraph, as an introductory paragraph, I wrote something in the first paragraph, but you would be considering something ke I had written something in the favor of the online education system, ठीक है। क्या है, पढ़ते हैं जरा इसको। In recent years, online education has emerged as a viable alternative to the traditional classroom learning. राइट, भरोसेबल, वाइबल, लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव के तौर पे लाइक उभरा है टू ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग या टू ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, दोनों बातें सही हैं, राइट। सो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग्स के अगेंस्ट ये एक अच्छी चीज़ साबित हुई है। with its promise of flexibility, जैसे अभी फायजा ने एक बात जिक्र कही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एसेसिबिलिटी होती है। अभी मुश्तबा ने बोला और मुझे अर्किश ने भी बोला कि इसमें एसेसिबिलिटी भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और प्लस जो है उसमें ये काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है फ्यूलिंग बचेगी, जब फ्यूलिंग बर्न नहीं होगी तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। एंड इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इसकी, विद इट्स प्रॉमिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एनी टाइम एनी वेयर, accessibility you can access that anywhere whenever you want। it has gained popularity among the students worldwide, no doubt। काफ़ी ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी हद तक इन हो चुका है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। however, transitional words, ठीक है, however
द क्वेश्चन अब क्या है, however उसने क्यों यूज किया, why he had used the transitional words over here, because now he want to add something opposite whatever he had said earlier. ठीक है. However, the question of whether online education is superior to traditional methods of remain ambivalent, ठीक है, still जो है confusion का शिकार है कि still क्या हम still आज भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग को जो है वो ओवरलैप कर गई है. ठीक है, स्टिल रिमेन एम्बीवेलेंट. भाई नहीं आता मुझे इसकी मीनिंग, चलो जी ऊपर जाते हैं, एम्बीवेलेंट की मीनिंग देख लेते हैं. ठीक है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग एंड कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग. कॉन्ट्रोडिक्ट्स का है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है. अगर मैं एडजेक्टिव्स के तौर पे यहाँ पे एम्बीवेलेंट का वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, सो एज अ सिनोनिम आई कैन यूज द वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड देखो, इट्स रिटन ऑलरेडी, राइट. एम्बीवेलेंट का मतलब किधर गया, कॉन्ट्राडिक्टरी. ये एज अ नाउन है, लेकिन आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट के तौर पे CONTRADICT, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट के तौर पे बोलोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, राइट. सो स्टिल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टेड है, एम्बीवेलेंट है, कंफ्यूज्ड है. अभी हम सही खुले तरीके से नहीं कह सकते, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इज अ न्यूबॉर्न बेबी एट द मोमेंट. While there are significant advantages to learn online learning, ठीक है, बहुत सारे advantages है, there are also inherent challenges that cannot be ignored. साथ ही बहुत सारे challenges हैं, what surely we cannot ignore it, right? हम उसको ignore नहीं कर सकते. वो challenges क्या है कि जैसे कि कभी कभार लाइक सिग्नल्स नहीं आते हमारे, कभी कभार सिग्नल्स वीक होते हैं, कभी कभार एसेसिबिलिटी का जो है इशू होता है, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट कवरेज एरिया एंड वी आर अनेबल टू एक्सेस द इंटरनेट. ठीक है, कभी कभार जो है वो हाई कॉस्ट इंटरनेट चार्जेस भी हो सकता है. तो ये सारे इनहेरेंट चैलेंजेस. This essay will explore both sides of the argument and provide a reasoned conclusion on the matter. अच्छा, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, इसको मैं कहूँगा कि यार स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है ना, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा आपने क्या करना है, कोशिश करो. दिस essay will explore both the side या I will explore both the side. इसको कल भी मैंने कहा था कि try not to use this, synonymize it with something else where like हम इसको कह सकते हैं, this essay will explore both the side of the argument. So here both the argument and like you can say reason conclusion can be discussed further. Passivized way में हम बोल सकते हैं, थोड़ा उसको चेंज कर दो. Instead of using this essay or I will explore, इस तरह के वर्ड कोशिश करो ना यूज करो. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, पहले यहाँ पर मुझे बता दीजिए. होपफुली कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. एंड इवन आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एज वेल, ओके, सो यू कैन लाइक लेटर ऑन आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो. नाउ प्रोसीडिंग, ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिट इन अ हाईलाइटेड मैनर कि हम इसका थोड़ा सा पॉजिटिविटी के भी बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया और नेगेटिविटी के बारे में भी थोड़ा सा बोल दिया कि कुछ चैलेंजेस आती हैं. अब वी डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग इन डिटेल्स हियर. नाउ इट्स अ टर्न टू डिटेल, talk about something in detail whatever we have talked about earlier, means in the introductory paragraph. Second paragraph, one of the most compelling arguments in favor of online education is ability to eradicate barriers such as geographical locations and mobility. ये तुम लोगों वाली बात है, अभी जो थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बोला था, जैसे कि फायजा है या मुश्तबा है, both are from like you can say far away area, they are from a very mobile area. We are sitting in Karachi, they are sitting in Rawalpindi and Islamabad. ठीक है, तो geographical locations को barrier नहीं करता. That eradicates the barrier, that मिटा देता है इस barrier को मिटा देता है. ठीक है, इस barrier को मिटा देता है, इस बैरियर को मिटा देता है. ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जरा से रुकिए.
ओके गाइस, ठीक है जी। अब हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। क्या है, व्हाट इज सेकंड पैराग्राफ? वन ऑफ द मोस्ट, मैंने क्या बोल दिया, वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज एबिलिटी टू इरेडिकेट बैरियर्स सच एज जियोग्राफिकल लोकेशन, मोबाइल एंड मोबिलिटी। ठीक है, यानी मोबिलिटी वही मुश्तबा वाली बात कि हमको जो है वो भागना दौड़ना नहीं पड़ता है, टैक्सी रिक्शा इनके वजह से जो है वो भागना दौड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, students from remote areas are or those with a limited access to traditional education institution can now engage in a high quality learning। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ हमने सेकंड पैराग्राफ में जो इसके मजीद जो है एडवांटेजेस की बात की। एक एडवांटेज मैंने बात किया, अब सेकंड एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। अब सेकंड एडवांटेज क्या है? वो स्टूडेंट जो कि बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, लाइक विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, या माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं, obviously they would be facing a lot of problems in attending the I mean the world best universities or the high class educational institution। तो इस तरह क्या होता है, उनका जो क्या कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग से वो engaged in high quality learning में हो जाते हैं। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है, अब टाइमिंग की बात आ रही है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर बाय ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे फायजा ने बोला था, ठीक है, एक बात कि टाइमिंग्स बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय द ऑनलाइन कोर्सेज अलाउज लर्नर टू स्टडी एट देयर ओन पेस, मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। यानी जो टाइमिंग्स होती है इसकी, अब हमने टाइमिंग की बात कर ली यहाँ पर कि उसकी वजह से हम और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स हम अपने अंदाज में अलाउ करता है, एक्सेसिबल लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइमिंग हमें अलाउ कर रहा होता है। दिस हैज प्रूव्ड particularly valuable in times of crisis, with the global pandemic serving as a catalyst for the widespread shift on the online platforms। और ये सारी चीजें, this has proved particularly valuable in times of crisis means, ये जो सारी बातें अभी हमने जो ऊपर अबव लाइन में सेकंड पैराग्राफ में जो कही है, ये क्राइसिस वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा ग्लोबल पेंडेमिक में काम आया। और व्हाट वाज दैट? यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ क्या जी, कोविड-19। ठीक है, विद द ग्लोबल पेंडेमिक सर्विंग एज अ कैटलिस्ट फॉर द वाइड स्प्रेड। मुझे नहीं पता भाई कैटलिस्ट का मतलब क्या है। सर्विंग एज अ कैटलिस्ट, सर्विंग एज अ कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पर कहाँ गया, नीचे, सॉरी। Serving as a catalyst, an event or a person that caused significant change or actions means वो event, for example the pandemic event कौन सा था? कोविड-19 का catalyst event था वो। ठीक है, तो उसने हमें वहां पर बहुत ज्यादा मदद दी है। ठीक है, ये सारी सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या बात कही? कोई नेगेटिव बात नहीं कही है, ओनली पॉजिटिव बात बोली हमने। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। अब यहाँ एक पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, थोड़े से डिसएडवांटेज विद शुगर कोटिंग करेंगे। ठीक है, कैसे? अब क्योंकि ये देखो, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ में हमने वही फर्स्ट पैराग्राफ वाली बात की लेकिन पॉजिटिव बातें की। थर्ड पैराग्राफ में भी हम ऊपर की ही जितनी बातें हैं वही करेंगे इन डिटेल, लेकिन डिसएडवांटेज की सूरत में, बट इन अ शुगर कोटिंग मैनर। ठीक है, कैसे? हैव अ लुक। डिस्पाइट दिसएडवांटेज, इट शोज, डिस्पाइट दिसएडवांटेज, इसका शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अब मैं थोड़ी सी बात अलग करने वाला हूं। ठीक है, despite these advantages whatever I have discussed above, there are several precarious aspect, dangerous aspect, negative aspect। ठीक है, precarious means dangerous, negative और likely to be problematic, precarious, इसकी pronunciation है precarious। ठीक है, there are several precarious aspect to online education। कौन कौन से aspect हो सकते हैं? अब हम नेगेटिविटी के बारे में थर्ड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। The reliance on technology can create significant problems। The reliance on, like, अगर हम रिलाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स विदाउट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास रिलायबल इंटरनेट एक्सेस जो है वो बिल्कुल नहीं होता, मींस जिनके पास सिग्नल्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एंड रिलायबल इंटरनेट एक्सेस और नेसेसरी डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सारे आप में से भी जो हैं बहुत सारे वो ले रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन में ले रहे होंगे क्लासेस, विच इज़ नेवर रिकमेंडेड, मैंने पहले ही कह दिया था। ठीक है, यू नीड टू यूज़ अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। ठीक है,
Furthermore, अब इसी डिसएडवांटेज को इसी पैराग्राफ में आगे लेकर चलेंगे. Furthermore, the lack of direct interaction with peer and instructors can lead to a sense of isolation, making the educational experience feel less innate and personal. यहाँ एक और एक ये इस पॉइंट को मैं खुद भी लाइक यू कैन से एंडोर्स करता हूँ कि फर्दर मोर लैक ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी हम क्लासरूम में अर्केश को पता है आज खिजर नहीं आया, खिजर को भी वो भी मुझे बताएगा, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इन माय क्लास, ठीक है, कि जब हम डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लास में कर रहे होते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मस्तियाँ भी होती हैं, बहुत सारी जो है वो मस्ती मजाक होती है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आती है, तो हमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इन डिस्टर्बेंस और मस्ती मजाक में रह के पढ़ने की आदत होती है बनिस्बत इसके कि हम सीरियस माहौल में पढ़ें, सीरियस माहौल में हमें नींद आने लगती है, ठीक है, ऐसा ही होता है, अभी भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है. सो लैक ऑफ डायरेक्ट, अब एक डिसएडवांटेज क्या हुआ, लैक ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, हमारे पास हमारे दोस्तों से कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, वह खामोशी से लेक्चर सुन रहे होते हैं. एंड इंस्ट्रक्टर्स कैन लीड टू द सेंस ऑफ आइसोलेशन. अब मैं एज एन इंस्ट्रक्टर जो है काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ तुम लोगों से, ठीक है, अब जो है अर्केश या खिजर जैसे स्टूडेंट जो है वो मुझे तंग भी नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल सुकून से अपनी बात कर रहा हूँ. तो इन द सेम सिमिलरली आज जो मैंने लेक्चर क्लास में डिलीवर किया है रिलेटेड टू द रीडिंग मटेरियल, ये लोग अच्छी तरह बता सकते हैं कि उसमें कंटेंट मैंने इतना जितना समझाया अभी वो कितना मैंने वहाँ समझाया होगा, इसका 10% भी नहीं समझा पाया होगा मैं वहाँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइक डिस्टर्बेंस. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल फोकस्ड होके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये एक सेंस ऑफ आइसोलेशन की बात हो सकती है, मेकिंग द एजुकेशनल एक्सपीरियंस फील्स लेस इनेट एंड पर्सन. ये एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस के मजे को थोड़ा सा लेस इनेट करता है, ठीक है. इनेट की मीनिंग ऊपर देख लेना, क्या मैं नहीं बता सकता. Meticulous planning is required to ensure the, अब यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज है, हालांकि meticulous का वर्ड बड़ा पॉजिटिव है कि बहुत ही केयरफुली थॉट प्लान्ड होना चाहिए हर चीज़, ठीक है, मिटिकुलस प्लानिंग. और जाहिर सी बात है हर टीचर, इवन मैं भी जब आपकी क्लास लेने से पहले मैंने भी काफ़ी चीज़ को प्लान किया है, मैंने चीज़ों को देखा है, मैंने चीज़ों को डिज़ाइन किया है, तो ये सारी मिटिकुलस प्लानिंग थी मेरी. लेकिन इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर that online course offer the same level of engagement and support as traditional classroom. कि आपका ऑनलाइन क्लासरूम, मुझे जो लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऑनलाइन में आई कैन टीच मच बेटर देन अ फिजिकल वन. फिजिकल में 50,000 डिस्टर्बेंस आती है और ऑनलाइन में खामोशी से तुम लोग बैठे रहते हो और कुछ भी नहीं होता, ठीक है. अभी कौन आया, अच्छा ये, एक सेकेंड, ठीक है जी. सो ये होता है कि आप खामोशी से बैठे रहते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है. तो ये होती है मेटिकुलस प्लानिंग, और इसमें लाइक सेम लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड सपोर्ट एज ए ट्रेडिशनल क्लासरूम. बट दिस इज नॉट ऑलवेज अचीवेबल. लेकिन ऑनलाइन में भी ये अक्सर अचीवेबल नहीं होता. जिस तरह फिजिकल क्लासेस में अगर मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ, भाई आज मुझे रीडिंग करवानी है, दैट डज नॉट मीन कि मैं आज रीडिंग के कंप्लीट अपने लेक्चर्स डिलीवर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. Sometime it is also failed. इसी तरह similarly may be possible due to the lack of internet immobility, due to the weak signals or due to any problem, may be possible मेरा लेक्चर यहाँ भी रह जाए, ऐसा भी हो सकता है. So in third paragraph what did I say? I talked about the negativity. लेकिन देखो सारी नेगेटिविटी को मैंने डायरेक्ट हिट नहीं मारा, मैंने डायरेक्ट नेगेटिव बातें नहीं की, बड़ी शुगर कोटेड अंदाज में, अच्छे अंदाज में नेगेटिव बात कर ली, और एक ग्लोबल अंदाज में की कि किसी को बुरा भी ना लगे, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइक डाइकोटमी, ठीक है. सो इसकी मीनिंग पहले हम देख लेते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, ठीक है. डाइकोटमी, डिविजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स. दो चीजों में डिवीजन या दो चीजों में वाज़े कंट्रास्ट क्या है. अब यहां पे फोर्थ पैराग्राफ की बात करेंगे. अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, दैट मीन्स आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद. कंटेंशन का मतलब होता है तनाजा, नेगेटिविटी. तो अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, अनदर पॉइंट ऑफ नेगेटिव पॉइंट, दैट मीन्स इन द फोर्थ पैराग्राफ I will be going not 100% negative but with a little bit mixed manner. मैंने ऊपर में जो थर्ड पैराग्राफ, सॉरी सेकंड था थर्ड था पता नहीं क्या, थर्ड पैराग्राफ में मैं नेगेटिव ही चला था टोटल, लेकिन शुगर कोटेड के साथ. फोर्थ पैराग्राफ में भी मैं नेगेटिव चलूंगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स करके चलूंगा.
Another point of contention is the dichotomy between the structure and the traditional education and a freedom offered by the online learning. ठीक है, एक कंट्रास्ट है between the traditional classroom and the freedom and the online based classroom, जो कि हमें जो फ्रीडम हमें ऑनलाइन क्लासरूम कभी कभार ऑफर करती है वो हमें फिजिकल में नहीं मिलती, जो हमें फिजिकल ऑफर करती है वो हमें ऑनलाइन में नहीं मिलती. ट्रेडिशनल क्लासरूम फोस्टर अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन. मेरी क्लास में तो नहीं होता, सॉरी. ठीक है, ट्रेडिशनल, मैं अपने फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की नहीं. ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासरूम फोस्टर अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, रूटीन एंड अ कम्युनिटी दैट मेनी स्टूडेंट्स फाइंड मोटिवेटिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेटिंग फाइंड करती है. इसमें क्लास डिसिप्लिन होती है, रूटीन होता है, कम्युनिटी बनी होती है, एक ग्रुप डिस्कशंस होती है, एक पी डिस्कशंस होती है. तो ये काफ़ी चीज़ें मोटिवेटिंग होती हैं. ये ऑनलाइन में भी ऑब्वियसली हो सकता है, मैं नहीं करवाता हूँ, वो अलग बात है. इन कंट्रास्ट, ऑनलाइन एजुकेशन कैन ऑफन फील लेस स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बयान करूंगा यहाँ पर. सो इन कंट्रास्ट, इन अपोजिट, online education can often feel less structured, requiring students to be more self-disciplined. means बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनने वाली बात है. This lacks a supervision can particularly challenging for the young students who are struggling with the time management. तो ये आप इस तरह समझ सकते हो कि this lacks of supervision and can be particularly, ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जबकि बड़ों बच्चों के साथ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ. अब हम आते हैं मोर ओवर फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ. मोर ओवर द आर्ग्यूमेंट दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज इनहेरिटेंटली इंफीरियर टू ट्रेडिशनल लर्निंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनटेनेबल. ठीक है, अभी भी 100% हम इसको कह नहीं सकते. अनटेनेबल क्या मतलब है, मुझे नहीं पता अनटेनेबल का मतलब. नॉट एबल टू मेंटेन और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शंस. अभी हतमी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हम 100% कुछ नहीं कह सकते कि इट इज इंफीरियर और लाइक सुपीरियर, कि ट्रेडिशनल लर्निंग के कंपैरिजन में इंफीरियर है कि सुपीरियर है. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मोर इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक, allowing for video lectures, live discussions and real time feedback. ठीक है, ये सारी चीजें ये किस में पॉसिबल है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दोबारा मैं बात कर रहा हूँ इसकी. ठीक है, सो इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ के दोनों चीज़ों में हम इंटरैक्टिव बन सकते हैं, यानी ऑनलाइन लर्निंग में डायनेमिक हो सकता है, काफ़ी हद तक वास्ट एग्जांपल्स दे सकते हैं, और हमारा वीडियो लेक्चर्स हो सकता है, हमारी लाइव डिस्कशंस हो सकती हैं, रियल टाइम फीडबैक, यानी हम लोग आपस में डिस्कशंस भी अभी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासरूम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं उसमें नहीं होता. These tools are enhancing the effectiveness of the online education. और यही वो बात है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को स्टैंड आउट करती है दूसरे ट्रेडिशनल मेथड से. मेकिंग इट अ वाइबल ऑप्शंस फॉर मेनी लर्नर्स, मेकिंग इट अ स्टैंड, लेकिन से मेकिंग इट, अभी मैंने क्या बोला था, लाइक अभी एक स्टैंड का मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया था, स्टैंड आउट. ठीक है, मेकिंग इट अ स्टैंड आउट ऑप्शन फॉर मेनी लर्नर्स, viable options, standout options for any learners. ठीक है, बहुत ही यूनिक. However, it is important to acknowledge that online education may never fully replace the benefit of face-to-face interaction in a classroom setting. अब आपने एक अपनी बात कर दी यहाँ पर कि however, it is important to acknowledge, ठीक है, इस बात को acknowledge करना बहुत ज़रूरी है कि online education में never fully replace, कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है हो सकता है 100% रिप्लेस ना करें हमारे फिजिकल लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं और वहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, इन कंक्लूजन, व्हाई ऑनलाइन एजुकेशन प्रेजेंट्स सेवरल अनडिनाइबल बेनिफिट्स. बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स देता है. क्या है, इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन साथ में इसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. राइट, ephemeral nature of online course. ephemeral nature, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता भाई. ऊपर जाते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, क्या है भाई. lasting for a short time, temporary, very temporary sort of things. The temporary nature of an online course and lack of direct social interaction may make it less appealing for some students. ये थोड़ी सी मैं एक लोकल बात करूंगा कि हम
फिजिकल क्लासरूम्स में जाते हैं तो हमें 10,000 दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ऑन द अदर हैंड जब हम ऑनलाइन क्लासरूम्स में आते हैं तो हमें लोग तो मिलते हैं बट उनसे बात करने का इतना मौका नहीं मिलता। दिस इज द थिंग दैट दे आर सेइंग अबाउट, ठीक है, इन कंक्लूजन। हाउएवर विद द राइट टूल्स, अब यहाँ पे मेरी ही बात जो मैंने कही है उसको मैं डिनाई करूंगा। कैसे? however लगा के, when it means I am adding something shocking, whatever I have said earlier. However, with the right tools and meticulous planning, it can serve as a valuable supplement to the traditional education. कर सकते हैं हम इसको, like बहुत अच्छा educational traditional education भी बना सकते हैं। As technology continues to evolve, ये बहुत important line है, सुनना बहुत गौर से और ये use भी करना है आपने। As technology continues to evolve, the future of education may lie in a hybrid model. आजकल जितनी तेजी से चेंजेस होती जा रही है तो हमारा फ्यूचर एजुकेशन जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जा सकता है। व्हाट डू आई मीन बाय हाइब्रिड मॉडल? हाइब्रिड मॉडल मींस कभी कभी फिजिकल कभी ऑनलाइन, कभी फिजिकल कभी ऑनलाइन। दिस इज हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। आज मैं क्लास लिया, आज मैं स्कूल गया, आज मैंने पढ़ाया, अब मैं कल बोल दिया भाई मैं कल ना ऑनलाइन आऊंगा, फिर परसों पढ़ाया परसों बोल दिया मैंने ऑनलाइन आऊंगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड, कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल मेथड। ऑब्वियसली वही वाली बात जो अभी मैंने कही। Therefore, the debate over whether online education is superior to classroom learning is not easily resolved. अब देखो बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला इसने कि उसने बोल दिया, किसी एक जगह स्टैंड नहीं हुआ, उसने बोल दिया कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते मींस therefore the debate over whether online education is superior to classroom learning is not easily resolved. हम खुल्लम खुल्ला कुछ भी नहीं कह सकते, but it is clear that online education is here to stay. लेकिन एक बात 100% है, अब ऑनलाइन एजुकेशन कहीं नहीं जाने वाली। इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, चाहे इसको अच्छा समझो चाहे इसको बुरा समझो, इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ इवन फर्दर, इवन इन द फ्यूचर। ये हमारा बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन। ये मेरी दो लाइनें जो लास्ट की लिखी हैं वो बड़ा अच्छा सा, मुझे ये फेवरेट लाइंस है मेरी, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया था, तो इसको मैंने इसलिए लिखा है आपको। नाउ इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज मुझसे पूछिए। अनम्यूट योर माइक डायरेक्टली, पहले तो क्वेरीज पूछो उसके बाद हम बात करेंगे। जी भाई, कोई क्वेरीज है? अर्केश है, फायजा है, मुश्तबा है, ये अपना क्या कहते हैं इब्राहिम है। एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? अनम्यूट करो सिंपली माइक को और मुझे बताओ प्लीज। अर्केश भाई तुम बताओ, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है। एक्चुअली तुमने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं लिया था, लेकिन लकीली आई हैव गॉट द वीडियो ऑफ दैट, तो उससे कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ जी अर्केश, अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो अबाउट इट, अबाउट योर व्यूज। सर समझ में तो आ गया है सब कुछ। ओके ओके, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ अभी करना है। अभी मुझे बताओ, यस मुश्तबा, फायजा बेटा, इब्राहिम बेटा बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब क्या है, व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क इज टू प्रोड्यूस 150 वर्ड ऐसे, एक शॉर्ट ऐसे लिखो, लेकिन इसमें सारे पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास 4-5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, देन लाइक फर्स्ट आपका जो है वो पॉजिटिव बातें, फिर सेकंड नेगेटिव बातें, थर्ड जो है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, और फिफ्थ जो है आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट से एक ऐसे लिख के ऑन द सेम टॉपिक मुझे बताओ। आई एम स्टिल हियर ऑनलाइन, एंड इफ यू नीड टू आस्क मी एनीथिंग सिंपली अनम्यूट योर माइक और फौरन मुझसे पूछो, ठीक है। गो अहेड एंड स्टार्ट योर राइटिंग। सर ये आप फाइल्स भेजेंगे ग्रुप में? ये मैंने भेज दिया बच्चे, मुस्तफा भेज दिया, ऑलरेडी आई हैव सेंट यू द फाइल, ठीक है। ओके, एंड इब्राहिम म्यूट योर माइक प्लीज बेटा। ये ऐसे अभी लिखना है? जी 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 बिल्कुल लिखो, इसका क्लियर पिक्चर दो, और क्लियर पिक्चर लेके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, एंड आई विल चेक इट ऑन द स्पॉट। तुम सबके सामने ही चेक करूंगा उसको, ठीक है। अभी अभी, एंड डू नॉट राइट वेरी लॉन्ग वन, शॉर्टर वन करो, ठीक है। गो अहेड, स्टार्ट।